ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ہے تھوڑا مشکل مشقت والا یہ جو شمر تھا نا، پانی بند کرنے والا اور حضور کی اولاد پاک کو قتل کرنے والا، جب مختار سقفی کی فوجیں اس کے پیچھے لگی نا تو یہ دوڑا مدینے کی طرف، مضافات مدینہ میں دوڑتا 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 ایک ایسے خیمے میں داخل ہوا جس خیمے کے اندر مصلی پہ امام زین العابدین تشریف فرما رضی اللہ تعالی۔ یوں نظر اٹھی امام علی مقام، دکھ بھی نہیں بندے کو بھولتے، دشمن بھی بندے کو نہیں بھولتے، جس نے تکلیف دی ہو وہ بھی اکثر یاد آتا ہے۔ تو امام نے یوں نظر اٹھائی، دیکھا، چونکہ وہ دوڑا آیا تھا، گرمی کا موسم تھا تو سانس پھولا ہوا تھا، تو امام فرمانے لگے پانی پلاؤں؟ دشمن ہے نا، میں نے کہا کام مشکل ہے پر انسان آیا ہی مشقت میں، ذرا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے نا، پانی پلاؤں کس کو؟ جس نے پانی بند کیا۔ تو شمر سمجھا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ امام اٹھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور بھر کے دیا، کہا پی لو۔ پیاس بڑی شدید تھی، وہ پی گیا۔ امام نے ایک پیالہ اور بھر کے دیا، تیسرا پیالہ اور دیا، جی بھر کے پانی پی لیا، تھوڑا سستا لیا، سانس بحال ہو گئی۔ امام مصلی پہ چلے گئے، اسے بھی محسوس ہوا کہ جو فوج میرے پیچھے لگی تھی وہ دائیں بائیں ہو گئی۔ وہ باہر نکلا، ہائے کام تو مشکل ہے پر میں نے کہا دشمن کو اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہے کردار اور اخلاق کی عظمت جس سے دشمن قتل ہوتے ہیں۔ باہر جا کے نا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، لوٹ کر پھر اندر آیا تو اسے پتا تھا کہ فوجیں میرے پیچھے ہیں، مرنا تو میں نے ہے ہی، تو ایک سچ نہ بول جاؤں جاتے جاتے۔ کہنے لگا زین العابدین شاید پہچانا نہیں، شرم سے گردن جھکی ہوئی، شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یوں آنکھ مبارک اٹھائی، فرمایا کربلا میں میرا سارا خاندان تو نے پیاسا ذبح کر دیا، میں تجھے بھلا سکتا ہوں؟ تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی وہ خون میں لت پت لاش مبارک یاد آ گئی تھی۔ تو جیسے ہی اندر آیا مجھے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ان کی درد یاد آئی تھی۔ میں نے اپنی پھپھی کو جن سسکیوں کے کو اپنے آپ کو سمیٹتے اور صبر کرتے دیکھا ہے وہ کیفیت یاد آئی، اور تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے اپنے باپ کا نیزے پہ چڑھا ہوا سر یاد آیا تھا۔ یہ کہتے کہتے امام کے پھر آنسو نکلے، آنسو پوچھے تو شمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کہنے لگا زین العابدین پہچان گئے تھے تو پھر پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے یوں کر کے آنسو پوچھے، کہنے لگے مجبور بڑا ہوں نا، علی کا پوتا ہوں، میں کروں کیا؟ میں علی کا پوتا ہوں، سیدہ کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے گھر کا رواج ہی کچھ اس طرح کا ہے، میں اپنی خاندانی وجاہت سے مجبور ہوں، تمہارا کام پانی بند کرنا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے دشمن بھی آئے تو پیالے بھر بھر کے پلانا ہے۔ تو اگرچہ مشکل ہے پر یہ مشقت کرنی ہے، اخلاق کو اس درجے پر لے کے جانا ہے۔ ہمارا سٹیٹس نہیں کہ دشمن کی طرح اس کی سطح پہ آ کر اس سے مقابلہ کریں۔ ہمارے استاد صاحب تھے تو کسی صاحب نے نا کوئی مسئلہ ایسا اٹھایا عقیدے کے تعلق سے، اور ساتھ اس نے بڑے بڑے غلیظ لفظ بولے، تو استاد صاحب فرمانے لگے جو دلیل اس نے مانگی ہے اس کا جواب تو میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب ہے۔ دوسرا فرمانے لگے جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ مجھے نہ میرے دین نے سکھائی ہے نہ میرے استاذہ نے سکھائی۔ یہ لب و لہجہ مومنوں کا لب و لہجہ، اسٹیج پہ بھی آپ وہ بولیاں بولیں گے جو بازاروں میں بولی جاتی ہیں، آپ دینی اور مذہبی اسٹیج پر بھی وہ کلام کریں گے جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں، جو انداز درست نہیں ہوتا، جو شان عام مومن کی نہیں، وہ آپ بات کریں گے۔ تو تھوڑی مشقت کریں، عزیمت کا راستہ اختیار کریں، رخصت پر عمل نہ کریں،
थोड़ी मुशक्कत हो। इसमें थोड़ी सी ना, हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन एक सहाबी थे, कलमा पढ़ गए। वालिद पहले नहीं था, चचा ने पाला था। चचा से कहने लगे मैंने हुजूर के पास जाना है। तो कहने लगा अगर जाना है तो सारा कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। कहते मैं पहले भी कई दफा सोच चुका था कि तू यूं ही कहेगा। उसने पैसे भी जेब से, ये देखो ये रास्ता है अजीमत का रास्ता। रुखसत तो ये थी ना कि अभी मैं मजबूर हूं, असबाब नहीं है, कैसे आऊं। ये रास्ता रुखसत गुंजाइश थी। चचा ने कहा कि मैंने चूंकि सारा कुछ दिया है, जेबें खाली करो, कर दी, कोई जमीन में से हिस्सा नहीं मिलेगा। चचा जरूरत ही नहीं, कहा ये हर चीज मैं रख लूंगा, का रख ले। ओ सुनो ना, राह अजीमत भी तो कोई राह होती है ना। ये क्या हुआ कि मेरे पास 10 करोड़ था तो मैंने लाख अल्लाह के रास्ते में दे दिया। ये भी तो जरा देना देखो ना। मैं इतने लाख लगा के हाज उम्रे पे गया, ये भी मदीने जा रहे हैं, जरा इनका भी हुजूर के बारगाह आली मर्तबत में जाना देखो ना। रुखसत हो रहे हैं, हर चीज दे के। चचा ने पीछे से आवाज दी, कहा ये जो कुर्ता और तहमद आपने पहन रखा है ना, शलवार कमीज, ये भी मैंने दिया था। ओए होए, उतार के ना वो कुर्ता भी और वो लिबास भी चचा को दिया। तेनू लब दिया आप गवाचे। जरा इस फिक्रे पे कभी घर जाके गौर तो करना। सानू अपनी खबर नहीं कोई, अपनी तेनू लब दे आप गवाचे। अपनी खबर मुझे अपना ही पता नहीं, ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को। अब तो आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। अब मुझे मेरा पता भी नहीं मिलता। सौदा लेने के लिए बाजार गए हम, और हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हम। और उनकी गली में हम एक काम से गए थे, फिर हर काम से गए। कहा ये कपड़े भी मेरे हैं, उतार के दे दिए। माँ के पास आए, पर्दे के पीछे खड़े होके कहने लगे अम्मा, एक दिन पहले भी तो मैं बेलिबास पैदा हुआ था ना, और तूने लिबास दिया था तो मैं फिर बेलिबास हो गया। माँ ने 2 औरतों वाली चादरें दी, एहराम की तरह एक बांध ली, एक ओढ़ ली। ये राह अजीमत के मुसाफिर रात को मदीने पहुंचे तो नबी पाक ने नाम रख दिया जुल बजा दैन, 2 चादरों वाला। फिर लिबास भी मिला, फिर घर भी मिला। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। फिर हुजूर की आली मर्तबत बारगाह में रहने लगे। फिर एक दिन तेज बुखार आया, फिर रूह परवाज कर गई। सहाबा फरमाते हो और राह अजीमत इख्तियार करने वाले और हुजूर के लिए मुशक्कत सहने वाले, और तेरे नसीबों पे कुर्बान जाएं। मदीने में रिवाज ये था कि जब कब्र में उतारने की बारी आती थी तो कोई करीबी उतारा करता था, पर इनका तो था ही कोई नहीं। कौन उतरेगा? जनाजा भी हुजूर ने पढ़ाया, और जब दफन की बारी आई, कब्र में रखना था, तो मदीने वाले रसूल कब्र में उतर गए। हुजूर कब्र में उतर गए, पहले लेट गए, कब्र को देखा ठीक बनी है, फिर अपने हाथों पे रखा, फिर कब्र में उतारा। दरवेश कहते हैं मैं मर गया तो फरिश्ते मेरी तलाशी लेने आए कि क्या लेके आया है। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। नबी करीम ने कब्र में, चूंकि राह अजीमत के मुसाफिर हैं, अगर आप वो रास्ता इख्तियार करें जो रास्ता अगरचे मुशक्कत वाला है, अगरचे कठिन है, अगरचे वो रास्ता मुश्किल है, लेकिन भाई इमाम आली मकाम का रास्ता रुखसत वाला नहीं। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। आपको अगर उस राह का मुसाफिर बनना है, फिर थोड़ा सा ना हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर जरा पैरों के छाले सहने पड़ेंगे।
सारा साल मौज करना और 10 मुहर्रम को 2 देगे पका के कहना मेरे नाम का हुसैनी कोई नहीं। इस तरह नहीं बंदा हुसैनी बनता, ये तो रास्ता ही बड़ा मुश्किल है। मैं आज ना जो भी पंचायत बैठती है ना, उसमें हर बंदे कहता है जी मैं तो जी यजीद के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो अच्छा वो यजीद है तो आप माज़अल्लाह हुसैनी होने के दावेदार हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से सोच समझ कर अर्ज करता हूं, तमाम सहाबा की अजमतों को सलाम, हर एक की कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, जहां जहां से वो गुजरे अहले बैत नबुव्वत का हर हर फर्द हमारी आंखों का तारा। पर बड़ा मुश्किल काम है हुसैनी बनना, बड़ा मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल है। यानी अपने हाथों पे 6-6 महीने के बच्चों को अपने सामने रूहों को परवाज होते देखना, कमर टूट जाती है, लोगों के हाफजे कमजोर हो जाते हैं। एक बेटे का जनाजा पढ़ लोग बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं जब से बेटा गया है ना, इसकी तबीयत और तरह की हो गई। ये बड़ा बोझ वाला काम है। जिंदगी में ना ये रुखसत वाली राहें तलाश करनी छोड़ दें, जरा अगले मोर्चों पे बैठने का शौक पैदा करें। हवा अगरचे तेज आएगी, ये छोटी छोटी मुखालफत होती है हमारे इलाकों में, हमारे ज़हन पे सवार हो जाए। और छोड़ो यार, आप राह तो देखो, शिकस्त खाए तो शर्म से पानी पानी हो, दुआ करो कि दुश्मन भी खानदानी हो। आप किसी मजबूत दुश्मन तो कोई दुश्मन तो अच्छा, आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो गए। अपनी जिंदगी में वो राह जो अजीम, ये देखो ना 2 सहाबा हैं, ओहद की रात है, हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश रदी अल्लाह ताला। सुबह ना ओहद की जंग होनी थी, तो हजरत अब्दुल्ला हजरत साद बिन अबी वकास से कहने लगे यार सुबह जंग होनी है, दुआ ना कर ले। फरमाया ठीक है कर लेते हैं। तो हजरत साद दुआ कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह सुबह मेरा ना किसी मजबूत दुश्मन से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं। आप दुआ करते हैं और जनाब अब्दुल्ला आमीन कहते हैं, या अल्लाह मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं, फिर मैं इतनी ताकत से लड़ूं कि उसे गिराऊं, फिर मैं तेरे दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूं, फिर उसकी ज़िरा उतारूं, फिर उसकी तलवार लूं, माल गनीमत में जमा कराऊं, फिर हुजूर की बारगाह में जाके गोया शाबाशी लूं। कहते हैं मैंने दुआ कर दी, उन्होंने आमीन कह दिया। अब हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चला मैं दुआ करता हूं तू आमीन कह। कहने लगे अल्लाह सवेरे मेरा किसी मजबूत दुश्मन से मुकाबला कराना। कहा आमीन। हजरत अब्दुल्ला दुआ मांग रहे, जनाब साद आमीन कह रहे। कहा अल्लाह वो मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं। कहा आमीन। ऐ अल्लाह फिर ना इतनी शदीद जंग हो कि वो काफिर मुझ पर गलबा पा जाए। यूं आंख खोली हजरत साद, कहा मैंने तुझे तेरी हर दुआ पे आमीन कहे ना, चुप करके आमीन कहे। ऐ अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझ पर सवार हो जाए। वो कह रहे हैं आमीन। हजरत अब्दुल्ला दुआ मांगते हैं अल्लाह फिर ना वो मुझे शहीद कर दे। उन्होंने कहा आमीन। ऐ अल्लाह वो शहीद करके बस ना करे, फिर वो मेरे कान काट डाले, मेरी आंखें निकाल दे, मेरा नाक काट दे, मेरे होंठ काट दे, मेरे बाजू काट दे, मेरा वजूद टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐ अल्लाह जब ये कटा हुआ वजूद लेके और ये हिस्से बखरे हुआ चेहरा लेकर मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं ना कयामत में, तो फिर फरिश्तों के बीच, औलिया, अंबिया, सुलहा, अतकिया, मोमिनीन के बीच मुझसे पूछे अब्दुल्ला तुझे क्यों शहीद किया गया, तेरी नाक क्यों कटी, आंखें क्यों निकली, तेरे कान क्यों कटे, होंठ क्यों कटे। तो मालिक बस मेरी इतनी इल्तजा है, मुझे तौफीक देना मैं कह सकूं न मेरा जायदाद का झगड़ा था, न कबीले का झगड़ा था, न बरादरी का झगड़ा था। मालिक ये मेरे साथ जो हुआ है तेरे रास्ते में हुआ है, तेरे रसूल के रास्ते में हुआ है।
ਬਸ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਲੱਭਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ, ਕਈ ਜੰਗਲ ਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੋਜ਼ਖ ਲੰਘਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ, ਡਿੱਠੀ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵੀ नहीं। दोस्तों ये ना ये रुखसत की राहें ना तलाश करो जी, वो मैं थोड़ा सा कर लूं, मैं थोड़ा सा रहने दूं, थोड़ा सा ना, ये देखो जरा राह मोहब्बत में ना और भी रास्ते आते हैं। कई दफा ना लोग आपको कहते हैं कि आपके महबूब ने तो आपके साथ यूं कर दिया, आपको तो वो मतलब उस तरह से पजीरा ही नहीं, आपका तो वो काम ही नहीं, आपकी तो वहां वो अहमियत ही नहीं। आपको बड़े बड़े रंगों में लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यहां तक लोग कहते हैं जी 5 नमाजें पढ़ता हूं, काम तो मेरा फिर नहीं चलता, मैं तो बड़े सदका देता हूं। आपका जहन बनाया जाता है कि आपकी तो कबूलियत ही नहीं, आप तो वहां तक पहुंचे ही नहीं, आपको तो वो मिला ही नहीं, आपको तो कुर्बत ही नहीं। माज़ अल्लाह ताला लोगों को ख्याल होता है इतना दीन पे अमल किया तो मुझे क्या मिला। ये बड़ी शातिराना चाल है नफ्स और शैतान की। एक सहाबी थे हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सुलह हुदैबिया के फौरन बाद ना मक्का मुकरमा से मुसलमान थे, हिजरत करके मदीने आए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शर्त तय की थी कुफार के साथ कि वहां से जो शख्स अपने आका की इजाजत के बगैर यहाँ आ जाएगा, अगरचे मुसलमान हो, हम वापस कर देंगे, और यहां से अगर कोई गया तो वो वापस नहीं करेंगे। अब बज़ाहिर ये शर्त बराबर की नहीं थी, लेकिन इसका बड़ा फायदा हुआ। जो मुसलमान मक्के से आता था, पता था हुजूर तो रखेंगे नहीं और मक्के वापस जा नहीं सकता, वो तीसरी जगह जाके बैठता था और इस्लाम का एक नया डेरा आबाद हो जाता था। बहुत सारे मुस्याबी शहरों में जाके बैठे और पूरे का पूरा शहर और कबीला ही मुसलमान कर लिया। हजरत अबू बसीर किसी तरीके से ना मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा पहुंचे। अब हुजूर ने शर्त पर साइन किए हुए थे कि कोई मक्के से मदीने आ गया तो हम वापस कर दें। काफिरों ने 2 बंदे भेजे कि जाए, सरकार का वादा है तो अबू बसीर को वापस लाएं। वो दोनों आए, जनाबे अबू बसीर को लेने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने वादा किया तो इनको वापस भेजें, थोड़ी देर के लिए जरा गौर करना। कितना मुश्किल था सरकार के लिए आए हुए को वापस भेजना, लेकिन हुजूर ने फरमाया हम वादा कर चुके हैं, हम तुम्हें मदीने नहीं रख सकते। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे कोई शिकवा नहीं गोया, हुजूर आप जैसे हुक्म करेंगे। यानी ऐसा हुक्म जो बज़ाहिर आम आदमी की तबीयत के खिलाफ हो, हुजूर ने मदीने से भेज दिया। मदीने से बाहर जाके जनाब अबू बसीर कहने लगे, लो मेरे महबूब का जिम्मा खत्म हुआ, अब मैं जानूं और तुम जाने। किसी तरीके से एक को कत्ल किया, दूसरा भाग गया। समुंदर के किनारे उस रास्ते में डेरा लगा लिया जो रास्ता मदीने को जाता था। मक्के जा नहीं सकते थे, मदीने आने से हुजूर ने पाबंदी लगा रखी थी। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा तकलीफ है। ये अजीमत का रास्ता है कि आप जिस महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, बज़ाहिर उन्हीं के पास जाने पर आप पर पाबंदी है, पर ये राह अजीमत के राही इन्होंने इन दुखों को भी सुख समझ के कबूल किया। कितना जमाना बीत गया साहिल समुंदर पे बैठे हुए, बाकी भी जिनको जगह नहीं मिलती थी, हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा, इस शर्त की वजह से जो मक्के और मदीने में जगह ना पाते वो भी इनके पास आते।
यहाँ ना इनकलाबियों का, मुजाहिदों की एक जमात तैयार हो गई। अब काफिर यहाँ से गुजरते तो जिस तरह वो मुसलमानों के काफिलों को रोकते थे, ये काफिरों के काफिले को रोकने लगे। जिस शर्त पर बड़ा इतराते थे ना कुफारे मक्का, अब इन्हीं लोगों से वो परेशान हुए कि ये तो जगह जगह जत्थे बन गए, हुजूर के यहाँ जा नहीं सकते, हमने इनको यहां से तकलीफ दी है, कुर्बान जाएं। अब शर्त खत्म करने के लिए खुद हुजूर की बारगाह, मेहरबानी करें आप इनको बुला ले मदीने। कुफार आए। जिंदगी के भी अपने रंग हैं। हजरत अबू जंदल फरमाते हैं, नबी पाक का मदीने से खत आया, पैगाम सबा लाई है दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे सरकार नबी से। कहते हैं हुजूर का खत तशरीफ लाया जनाबे अबू बसीर के पास के आ जा मदीने। नबी पाक का खत आया। और इधर सुनना हो मेरे संगियो, हुजूर का नामा मुबारक आया, खत मुबारक आया। कहते हैं जनाब अबू बसीर को ना हुजूर का खत दिया तो हालत ये थी कि वो चारपाई पे लेटे थे, सख्त बीमार थे, आखिरी वक्त चल रहा था। यूं हुजूर का खत पढ़ा, मदीने आने की इजाजत हो गई है, और फिर उसे चूमा, फिर आंखों पे लगाया, और कहते हैं फिर उन्होंने सीने पे रखा, रूह परवाज कर गई। लै ओ सजना सा तोड़ निभाई, जान भी दिती ते राह तेरे। इस तरह का रास्ता के आखिरी दम तक नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम की बात के वो पाबंद रहे। राह रुखसत ना इख्तियार करो, चोर दरवाजे ना ढूंढो, राह अजीमत के मुसाफिर बनो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को सब ने रोका कि हुसैन अभी मौका नहीं है, वक्त नहीं है, हालात का तकाजा नहीं है, अभी ये खड़े होने का वक्त नहीं। और मुखलिसीन ने रोका, पर इमाम ने कोई रुखसत की राह इख्तियार नहीं की, राह अजीमत की राह इख्तियार की, पत्थरों और चटियल मैदानों वाली राह इख्तियार की, प्यास भूख और परदेश की राह इख्तियार की। उन्होंने कुर्बानियों का रास्ता इख्तियार किया। वो आराम से बैठते, कितने पीर हैं जुब्बे कुब्बे पहन के आस्थानों पर बैठे हैं, लोग आ जाते हैं, ये मुशक्कत कौन करे। इमाम हुसैन के पास तो आस्थाना था मदीना शरीफ, मस्जिद थी मस्जिद नबवी शरीफ, गुलाम थे सहाबा और उनकी औलादें जो इकराम करते थे इमाम अली मकाम का, हर चीज मौजूद थी, दुनिया वहां सिमट के जाती, पर कोई बुजदिलाना राह नहीं इख्तियार की। हमारे रास्ते बड़े बुजदिलाना से हैं, हमारे रवैये बड़े कमजोर से हैं, हमारी बातों में बड़ी लचक है, हमारे लबो लहजे में इजाजतों का राह है कि कोई रास्ता निकल आए तो हमें इजाजत हो जाए। इमाम हुसैन से सीखिए, अपने मिजाज को उस रास्ते पे डाल। ओ मेरे भाई, थोड़ा सोना शुरू करो, कम खाने की आदत डालो। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो किसी ने उनसे कहा कि ये औलाद बड़ी होके सहारा बनेगी। कहने लगे ना भाई, मैंने कभी नहीं सोचा बच्चे सहारा बनेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मैंने कोशिश की है दादा दादी की भी नौकरी करूं, नाना नानी की भी करूं, माँ और बाप की भी करूं, जिस तक हाथ तक हो सके बहन भाइयों की भी करूं, बीवी बच्चों की भी, मैं जो हुकूक है वो अदा करूं। मेरी ख्वाहिश नहीं है कि कल को मेरा कोई सहारा बने, मुझे रब रसूल का सहारा ही ठीक है, यही आसरा सबसे बेहतर है। हम इस तरह की भी कोई तजारत नहीं करते, हम कोशिश करते कोई खिदमत हो जाए। ये जो हमारा ख्याल होता है ना, मेरी खिदमत की जाए, मेरी ताबेदारी, आप छोड़ दें, आप खुद खादिम बन। ये जो मखदूम बनने का शौक है ये निकाल दें। पर मैंने ड्यूटी करनी है जितनी मुझसे हो सकी, हर वक्त ड्यूटी का मिजाज बनाए। और ये जो थोड़ी सी मुझे गुंजाइश मिल गई है, मिसवाक नहीं तो मैं उंगली चला लूं, मैं खड़ा नहीं हो सकता, चलो बैठ के पढ़ने की भी इजाजत है, मैं बैठ के पढ़ लूं, मैं फलाने काम की भी शरीयत। आप आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुस्ताहब छोड़ता है फिर सुन्नतें भी छोड़ता है, और जो सुन्नतें छोड़ता है एक वक्त आता है वाजिबात का तरक करता है, वाजिब छोड़ता है तो वसवसे आते हैं, वो फर्ज भी छोड़ने शुरू कर देता है। लिहाजा
میں آپ کو بتاتا ہوں اکیلے نماز پڑھنے کا وہ مزہ نہیں جو جماعت سے پڑھنے کا. تو رستے نہ نکالا کریں کہ یہ بھی تو جائز ہے، اس کی بھی تو گنجائش ہے، اس رستے میں نہ پڑھیں. امام حسین نے ہمیں راہ یہ دی ہے کہ ہمیں عزیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے، گنجائشیں نہیں تلاش کرنی.